Hello students, today we are going to do chapter Light and Shadow. Light and Shadow. It's a very important topic. So let us start. Light and Shadow. Light. Just look at this. These are two dark over here. है ना? कितनी darkness है. We cannot see what type of objects are kept inside these rooms. Right? So what we need, if you want to see the object inside the room, what we need to have? We need to have the light source. लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस. लाइट ऑन की है एंड नाउ वी कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट. Earlier we were not able to see the objects like this, and when the light on we can see the objects inside the room, right? So now you must be knowing what is light, है ना? On your phone you are able to see the various alphabets, videos, whatever you are watching on this phone. You can only see it in the presence of light, right? Your phone is emitting light, and that then only you are able to see the various pictures on your screen. Clear? So here we go. So light is a form of energy. Light क्या है? It's a form of energy. We cannot touch it. और जिसको हम touch नहीं कर सकते हैं in science, that is the energy. So light is a form of energy. Just look at these bulbs. They are producing light. Right? They are producing light. Just look at them. Right? Now question arises, क्या सभी ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं? नो. सो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है? हमें लाइट मिलती कहाँ से है? सोर्सेस मीन्स फ्रॉम विच वी आर गेटिंग द लाइट आर नोन एज सोर्सेस. सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट? जस्ट सी हियर, दीज बल्ब्स आर प्रोड्यूसिंग लाइट, है ना? हेडलाइट्स जो हैं ये भी हमें लाइट दे रही हैं यहाँ पर. सो दे आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. Clear? Now the main source of light is, and the ultimate source of energy is our sun. This is the sun. यही नेचुरल सोर्स है हमारा लाइट का. दिन में जो भी हमें वेरियस ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं अपने सराउंडिंग में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सन. नाइट में हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं, सो हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यूज़ करते हैं. बट नाउ at the daytime we are getting light from the sun. So sun is the main source of light. Clear? There are few other sources of light which are used by us, especially at the night time. हम नाइट टाइम में इन सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं. डे टाइम में तो वी आर गेटिंग द लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सन, राइट? बट व्हेन द सन सेट्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट then these are the various sources of light, especially at the night time. Candle, bulb, lamp, tube lights, right? So these are the sources of light at the night time. Can you see it? Okay. Now these are some other sources of light. What are they? Lamp, kerosene lamp, fire, आग जलाना, flame, जो आपकी गैस ऑन करते हो ना, that is a flame, and torches. They are the other sources of light. See, if we differentiate two modes of light or two sources of light, what they can be the natural and the artificial. Natural जो हमारी होती है डे टाइम में होती है, produced by the sun. Artificial, or you can say man-made, is at the night time, and these are the various bulbs which we are using for producing light. So these are the two major
sources of light. That first one is the natural source of light, and the second one is the artificial source of light. Now, natural sources of light. Natural sources of light जो हमारी होती है, that is the sun. सन ही हमारा क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन से ही हमें क्या मिलती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, और यू कैन से एनर्जी जो हमें मिलती है, डेट इज द सन. एंड सन इज द ओनली नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, एंड स्टार्स आर ऑल्सो द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सो मेजर जो एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के, वो कौन से हो गए बेटा? स्टार्स एंड सन. क्लियर? दीज आर द natural sources of light. Now, artificial, or you can say man-made sources of lights. So let us study about them. कि what are the artificial or man-made sources of light? So artificial, as we have seen before in this video, that candle, lamp, tube lights, these are the artificial sources of light, जो कि इंसान ने खुद बनाई है. That's why it is known as the man-made source. Clear, everyone? Now, there are other two categories of light. What are they? Luminous and non-luminous bodies. Luminous and non-luminous body. जो heat source होता है, that is the luminous bodies, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. We need some other light source to see that particular object is known as the non-luminous bodies. Just look at these. These are the sources of light. Yes, इनके यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? हमें लाइट मिलती है यहाँ से. So these are the sources of light. Sun, stars, bulb, candles. These are the sources of light. है ना? सो दीज आर द ल्यूमिनस बॉडीज. क्यों? क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर नॉन एज द ल्यूमिनस बॉडीज. ल्यूमिनस बॉडीज आर दोज बॉडीज विच प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट. राइट? सो what can be the examples of the luminous bodies? Sun, stars, bulb, candles. So these are the luminous sources of bodies. Now, non-luminous body, moon. Moon, you must be like surprised by knowing this, some of you, that moon has its own light. हम सोचते हैं कि मून के पास अपनी खुद की लाइट है, but no, this is not. मून की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की ही लाइट को. मून के पास उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है. इफ इट्स डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, देन इट इज नोन एज द नॉन ल्यूमिनस बॉडी. सो हियर वी कैन से दैट मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ये अर्थ है तो हमें सन की लाइट से, ये देखो ऐसे रिफ्लेक्शन होती है, तभी हमें मून नजर आता है. एंड हमें क्या लगता है कि जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द मून. बट दैट्स नॉट ट्रू. मून डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. So moon is a non-luminous body because it do not emits its own light. ये अपनी खुद की लाइट को emit नहीं करता. That's why. Just look at it once again. It reflects the light of moon. I mean sun. Now we are on another level of the chapter. Light, transparent, translucent, and the opaque objects. So these are the various types of objects according to the light, according to the passage of light. Light कैसे पास करती है उसके बेसिस पे हमारे पास 3 objects हैं, 3 types of objects हैं: transparent, translucent, and opaque.
नाउ जस्ट लुक एट दिस ट्रांसपेरेंट. ये फिंगर है, इसकी प्रॉपरली फिंगर यहाँ से पीछे की तरफ से नजर आ रही है इस ग्लास के पीछे से, यानी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसल्यूसेंट, हम वी कैन सी, हाँ फिंगर्स हैं बट हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रही. जितना क्लियर यहाँ नजर आ रहा था उतना क्लियर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, यानी कि जहां से हमें कम क्लियर नजर आए दैट इज नोन एज द ट्रांसल्यूसेंट. ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके पीछे का ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए दैट इज नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट. सो जस्ट लुक एट इट. ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque objects. Now, transparent object. ये this is a source of light, torch. यहाँ से लाइट पास हुई, येलो कलर की आपको नजर आ रही है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि ग्लास का बना हुआ है. यहाँ से लाइट पास की और यहाँ से देखो फिर से लाइट नजर आने लगी आपको, यानी कि जो लाइट यहाँ से आई थी वो इसके अंदर एंटर करके बाहर निकल गई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से पास हो गई. यानी कि जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कंप्लीट लाइट को पास कर दे दैट इज नोन एज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है दैट passes full light through it, so that is known as transparent object. Just look at it. So what are the examples of transparent object? This clear glass, we can see that this hand na behind this object, clear glass, so it is a example of the transparent object. Water is also a transparent object because it passes the complete light. Now just look at it. This tracing paper, yes, this is a source of light. Here light started moving through this tracing paper, and some of the lights passes through it. Not complete light pass through it, only some of the light passes through it. So such type of objects which passes only some % of light is known as translucent object. यानी कि जो आपके अपने अंदर से कुछ ही लाइट को पास होने दे, कंप्लीट लाइट को नहीं बट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट को अपने अंदर से पास होने दे, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. हेयर यू कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. सी दिस पेपर है ना, so these are the tracing paper, frosted glass, wax paper, oil paper. So these are the examples of the translucent object. यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने अंदर से सिर्फ थोड़ी सी लाइट को पास करने देंगे, यानी कि अगर हम उसके अक्रॉस देखें तो वी विल सी दैट ऑब्जेक्ट, बट वो हमें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा बट वो क्लियर नहीं दिखेगा. क्लियर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसने कुछ ही लाइट को अपने अंदर से पास होने दिया है और मैक्सिमम लाइट को उसने रोक लिया है. क्लियर? सो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट. जस्ट लुक एट दिस वुडन बोर्ड. एक वुडन बोर्ड यहाँ लगा दिया, अगेंस्ट सेम लाइट है सोर्स की, लाइट क्रॉस इसके ऊपर हिट की, लेकिन यहाँ से कोई भी लाइट नहीं आई. नो लाइट पासिस थ्रू इट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को 1% भी बाहर नहीं जाने दे, कंप्लीट लाइट को वहीं रोक ले, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देगा, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट. So opaque objects are those objects which do not pass any amount of light through it. So that is known as the
opaque object, and its best example is the wooden board. Just look at this wooden board. ये wood से बना हुआ बोर्ड है और ये अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं दे रहा. सो दिस इज नोन एज द opaque object. So opaque object, let us see the various examples of the opaque object. See, these are the various examples of the opaque object. Pieces of wood, chalk, your notebook, and bodies of animals are the opaque objects because they do not pass any light through it. Now, shadow. दिस इज अ लाइट. शेडो कैस कब प्रोड्यूस होती है? जब किसी लाइट के बीच में हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं. अभी हमने पढ़ा था ओपेक ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो उसके पीछे या आगे क्या बनती है? एक शेडो बनती है. एक ब्लैक एरिया आ जाता है, ब्लैक शेडेड एरिया, एंड दैट इज नोन एज द शेडो. जस्ट लुक एट इट. ये लाइट है, यहां पर हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है. सो अब ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट इस लाइट को रोक रहा है, यहाँ पर पास होने नहीं दे रहा है. देखो, इसके आसपास की लाइट सिर्फ पास हो गई जो इसके साइड से निकली है, इसके पीछे कोई भी लाइट नहीं आई है. और यहाँ पर इसने लाइट को रोक लिया है. सो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या नजर आ रही है? एक शेडो, एक ब्लैक शेडेड एरिया, दैट इज नोन एज द शेडो. So this black shaded area is known as the shadow. Now size of shadows. आपको पता है जो shadows हैं, हमारी भी shadow बनती है from morning to evening. तो जो shadows हमारी होती है वो कभी हमें हमारी height जो है वो shadow की height जो है वो लंबी नजर आने लग जाती है, कभी कम नजर आने लग जाती है. So it means जो शेडो के साइजेस होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे मॉर्निंग में सनराइज होता है तो हमारी शेडो बहुत ही लंबी होती है, और जैसे जैसे मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून होता है हमारी शेडो स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही नून आता है हमारी जो शेडो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है. और फिर से इवनिंग के टाइम जब सनसेट होने लग जाता है फिर से हमारी शेडो इंक्रीज होने लग जाती है. सो दीज आर द साइजेस ऑफ द शेडो. जस्ट लुक एट इट अगेन. जस्ट लुक एट दिस अगेन, दिस phenomena, how it's actually work. राइट और नॉट? अगेन शेडो जब सनसेट होने लगा फिर से शेडो जो है वो हमारी इंक्रीज होने लगी, है ना. सो सनसेट और सनराइज के टाइम पे शेडो क्या होती है? हमारी इंक्रीज होती है. ओके. तो जो अगर हमें शेडो देखनी है, आपको भी नोटिस करनी है अपने घर पर, तो आप क्या करोगे? रूम में जाओगे, रूम में पीछे एक कार्डबोर्ड लगा दोगे, और कार्डबोर्ड लगाने के बाद अपने भाई बहन को वहां खड़ा कर देना, और सामने आके वहां पर अपने सिस्टर या ब्रदर की तरफ ऐसे टॉर्च से लाइट मारना. जब आप टॉर्च से लाइट उसको करोगे तो उसके पीछे क्या बनेगी? उसकी शैडो बन जाएगी. देखो ये ब्लैक कलर की शैडो बनने लगी है. अब जैसे ही आप अपने सिस्टर या ब्रदर को बोलोगे थोड़ा सा आगे मूव करने के लिए, जैसे ही वो 1-2 स्टेप आगे आएगा उसकी शैडो बढ़ने लग जाएगी. देखो बढ़ गई ना शैडो, है ना. शेडो का साइज इंक्रीज हो गया. अगर वो टच थी कार्डबोर्ड पे तो एक्चुअल वही साइज था जो कि उस बच्चे का साइज था, बट जैसे ही उस बच्चे ने फुट अपने थोड़े फॉरवर्ड स्टेप के लिए, देन व्हाट हैपन, उसकी शेडो जो है वो इंक्रीज होने लग गई. तो यानी कि साइज ऑफ शेडो क्या करता है? डिफर करता है. तो साइज ऑफ अ शेडो किन पे डिपेंड करता है? ये फैक्टर्स हमें जानना बहुत जरूरी है. राइट.
देखो ये इंसान है, इसके यहाँ पे साइज ऑफ शेडोज है। फर्स्ट फैक्टर है हमारा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है देन शेडो विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन साइज। If it is small then it will small in size. And also the source of light. Source of light क्या है? Source of light अगर हमारा small है तो हमारी small shadow होगी, और अगर large है तो क्या होगी? Large shadow होगी हमारी। Similarly there will be the second point also. थर्ड पॉइंट इज कि शेडो का और जो हमारा कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड और जहाँ जिस स्क्रीन पे हमारी शेडो बन रही है उसके बीच में गैप कितना है। अगर गैप ज्यादा होगा तो शेडो बड़ी होगी। देखो अगर ये लड़की ने फॉरवर्ड चल लिया, अगर ये पीछे है, गैप कम है, तो शेडो बिल्कुल बराबर है, राइट, बिल्कुल ही बराबर है। लेकिन जैसे ही वो आगे चल गया तो शेडो क्या हो गई, उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? So these are the various factors on which the size of shadow depends. Now eclipse. आपने eclipse सुना होगा। eclipse क्या होता है? eclipse का मतलब shadow ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो सन और मून है, सी जस्ट लुक एट इट, वो रिवॉल्व करते हैं। मून एंड अर्थ जो है रिवॉल्व करते हैं, राइट। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये तीनों ही लाइन में आ जाते हैं, यानी कि सन, अर्थ और मून, ये तीनों ही कैसे आ जाते हैं बेटा, लाइन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। उसी टाइम पे क्या होती है, एक्लिप्स। बेसिकली एक्लिप्स का मतलब होता है शेडो फॉर्म होना। यहाँ पर ये जो सन है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये स्क्रीन की तरफ वर्क करने लग जाता है। जैसे ही जब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं तो जो मून है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ जब वो अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो अर्थ की जो शेडो है वो मून को कवर कर लेती है, इसलिए हमें मून जो है डार्क नजर आने लग जाता, मून नजर ही नहीं आता। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एक्लिप्स। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्सिस। सो एक्लिप्सिस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लोनार एक्लिप्स एंड सोनार एक्लिप्स। क्लियर एवरीवन? सो देखते हैं अब वो क्या होते हैं हमारे सोलर एक्लिप्स। 2 टाइप्स के एक्लिप्स होते हैं। 3 कंडीशंस हैं। अगर सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। अब क्या होगा, ये जो मून है, अब मून की जो शेडो है, ऑब्वियसली अर्थ बड़ा है तो कंप्लीट पे तो आ नहीं सकती है इसकी शेडो, तो कुछ पोर्शन के ऊपर जो है यहाँ पर ये मून है, मून की इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाती है, शेडो आ जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं हम इसको, सोलर एक्लिप्स। क्लियर? यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या आ जाती है, डार्कनेस। देखो ये वाला पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया, डार्क हो गया ना, अर्थ का ये वाला पर्टिकुलर एरिया। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। जब अर्थ के ऊपर शेडो गिरती है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी द लूनर एक्लिप्स। इसके अंदर क्या होगा बेटा, अगेन सन होगा, लेकिन अब की बार बीच में क्या है, अर्थ, और यहाँ पर क्या है, मून। अब खुद ही देखो मून का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो ये कंप्लीटली शेडो में आ जाएगा, किसके, अर्थ में। यानी कि अर्थ की शेडो किसके ऊपर गिरेगी, अब मून की तरफ गिरेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स। यानी कि जब शेडो मून के ऊपर आती है तो वो होता है लूनर एक्लिप्स, और जब शेडो अर्थ के ऊपर आती है तो वो क्या होता है, solar eclipse. So solar eclipse and lunar eclipse, these are 2 types of eclipses due to the shadows. Clear everyone? So this is all about the today's topic of light. Thank you so much for watching this video.